रिकॉर्ड हो गया ना? हो रहा है ना बेटा? हो रहा है तो ऐसे डरा रहे हो। सो द 3D shapes, हमें 3D shapes देखने हैं, and all these shapes you have actually seen in and you're acclimatized with these in grade 9, but we will take a revisit. So we will have cuboid, basic knowledge we should have of cuboid, cube. After that we will get into cylinder, and cylinder, maybe the perfect word is right circular cylinder, right circular cylinder. Then we'll go to cone, and then we'll go to sphere and hemisphere, sphere and hemisphere. ठीक है? Now all we should be knowing is we should be able to know what is the volume of a particular unit, what is the surface area of a particular unit, because questions now they won't ask you calculate the volume, वो चला गया हमारा. Now they will give you complex problems like, you know, cost something this way, this has been molded. So let's first understand before going into problems. Let's have our basics first clear. Hello. डर लगता है सर, कोई भी फोन आ जाता है ना, पता नहीं क्यों चुरा लिया पासवर्ड उसमें. The phone is 404067 all zeros. I was thought it was my gate. Anyways, so we get into cuboid first. Cuboid. So cuboid is a 3D structure. If you try to look at its 2D structure, let me change this software. We'll use the other one. 1 minute. That is easy for us. Cuboid is actually the 3D shape, and if you see the parent 2D shape of a cuboid, not it's a rectangle. We can't say parent 2D shape of a cuboid, but cuboid का जन्म एक rectangle से होता है. आइए cuboid के ऊपर थोड़ा सा research कर लेते हैं. Okay, everything about a cuboid. So this is a cuboid. All right. If you see a cuboid, अभी concepts clear रखो. A cuboid has got 6 faces. That means 3 different faces and pairs of them, right? So if you take this as the length, this as the width, and this as the height, then if you go by surface areas, then on the bottom side you have a rectangle which is L into W. So on the top side also it's L into W, correct? It's a shoebox. And then on this side we have a W into H rectangle. This side also a W into H. Those are the 2 left and right sides. The front face is a L into H. The back face is also an L into H. Are we fine on that? So if we talk about, say, surface area means overall all the areas of all the qualifying surfaces. Okay, if we talk about surface area, then I have a L into H, and I have 2 of L into H because the front and the back. Then I have L into W, L into W, again 2 of L into W, and I have W into H, again 2 of W into H. Is this fine? So I can take 2 as common, and it becomes LH plus LW plus WH. This is the total surface area of a sphere. Understood? Sorry, total surface area of a cuboid. Clear? Is this much okay? Now if you talk about lateral surface area, generally lateral surface area एक और word होता है curved surface area. Curved surface area is used for any object which has a curve around it, circular shape. इसका lateral surface area देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसके lateral surface area के लिए what we will do is that, let's say we have one axis, ऐसे एक axis ले लेते हैं, and imagine this whole box is now rotating around its axis. तो कौन से surface areas eliminate हो जाते हैं? The top and the bottom gets eliminated. Have you understood? So if somebody says what would be the lateral surface area? The lateral surface area, in lateral surface area, the front and the back will qualify. So 2 into LH qualifies, and the 2 sides also. So 2 into WH also qualifies. So it's 2 common LH plus WH. In fact, you can take 2H common L plus W.
No need to memorize any formula. Get your concepts absolutely clear. Have you understood? This is lateral surface area is, एक जूते के बॉक्स को ऐसे घुमा लो ना, द लैटरल एरिया, टॉप एंड बॉटम नहीं होते हैं उसमें, तो टॉप एंड बॉटम निकल गया तो आपका क्या रह जाएगा? ओनली दीज थ्री साइड्स. इज दैट फाइन? क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है? ओके. Now this is grade 9 level things that we are studying. In grade 10 there will be lot of, इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर स्फीयर वेयर लेके आएंगे, सो सब बाद में. पहले हम क्यूबॉइड को अच्छी तरह समझ लें. If you have understood a cuboid, then it is very easy for you to relate to a cube. A cube is a cuboid where L is equal to W is equal to H, and we would say that is a side. Side. क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होता है, तो इसको एक नाम दे दो, साइड हो गया, एज बोलते हैं हम उसको. क्यूब कहां से जन्म हुआ है? स्क्वायर से जन्म हुआ है. स्क्वायर का 3D फॉर्मेशन इज क्यूब, रेक्टेंगल्स 3D फॉर्मेशन इज क्यूबॉइड. इज दिस अंडरस्टूड? सो इफ यू नो क्यूब, then cuboid becomes very easy. Sorry, if you know cuboid, cube becomes very easy. So if you talk about the total surface area, अब total surface area में क्या हो जाएगा? 2 को 2 ही रखो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? S into S, S square, S square, S square, यानी कि 3S square. तो ये टोटली कितना हो गया? 6S square. आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो. क्लियर? और अगर हम इसके lateral surface area की बात करें, हालांकि you don't get lateral surface, so you will have a S and inside you have S plus S is a 2S, यानी कि कितना हो गया? 4S square हो गया. Are we fine? Yes. All we are trying to talk out here is area related parameter, and area is a 2D parameter. That means your units will be either meter square or centimeter square, or you can be inch square, or it can be feet square or square feet. क्यूब हो ही नहीं सकता है क्योंकि एरिया में 2D है, दो पैरामीटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, x पैरामीटर एंड y पैरामीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन एरिया there is, it's 2D, that means x and y, इनका ही मल्टीप्लिकेशन होता है, मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस. देयरफॉर इन एरिया में आपको कभी भी क्यूब हो नहीं सकता है. अगर आपने लिखा ना, मैं तो काट के 0 देके नेगेटिव मार्क ले रहा हूं, प्रचंड बेवकूफी है वो. क्लियर? अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम के बारे में. वॉल्यूम, ओके. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन फोटोकॉपी पेज का बंडल देखा होगा ना, जेरोक्स पेज का. उसके सबसे नीचे क्या है? एक पेज. इज दिस द रेक्टेंगल? उसकी कोई हाइट नहीं है, उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? नीचे वाले पेज की लेंथ इनटू द विड्थ. एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, जाते रहे. कितने पेजेस हैं? 8 पेजेस है. तो आप उसको एरिया से भर रहे हो. पहले वाला कितना है? LW, 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 2LW, 3LW, 4LW, 5LW, ऐसे कितने LWs है? 8 LWs है. तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई हमारी? LWH. अच्छा, एक और चीज सुनिए. टेक अ समुराई स्वॉर्ड. ये जो है ना, ये सिमेट्रिक फिगर है. दिस इज अ सिमेट्रिक फिगर. सिमेट्रिक फिगर मींस इफ आई कट इट अक्रॉस हियर तो भी 2 सेम आएंगे, ऐसे काटने से भी 2 सेम आएंगे. अगर आप इसको ऐसे कट कर दो LW में, से वी चॉप इट लाइक दिस, और मैं आपको ऐसे दिखाऊं चॉप करके, तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा. LW वाला ही रेक्टेंगल. बटर का, कुकिंग बटर का जो बड़ा वाला पैकेट होता है ना, उसको काट लो बीच में से, या जूते के पैकेट को काट लो और काट के ऐसे दिखाओ, तो उसे क्या दिखेगा? LW दिखेगा. तो दैट इज नोन एज दैट LW. या कम इन, डोंट रिंग बेल, कम इन, कम इन, कम इन. Anya. Don't come in. अरे come in, बाबा, waiting for you. Sorry sir. अरे बैठो, आप ही का क्लास है. धीरे 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 धीरे. There's a camera.
Don't go with your bag out there. Don't go with your bag out there. Hit it. You come and take your, open your bag and take out your book and then go. Okay, so if you just chop it out here, then आपको क्या दिखेगा? You see a rectangle. ऐसे चीज को हम बोलते हैं, this portion means rectangle means ये आपका क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना? यहां पे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा ओनली. डू यू एग्री और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड द LW इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. इसको हम कैसे पढ़ते हैं हायर क्लासेस में? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द परपेंडिकुलर, और यू कैन से द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द हाइट. कोई भी सिमेट्रिक, Anya, go from that side. Slowly. Yeah. कोई भी क्रॉस सेक्शनल, any cross sectional, what you call, any symmetrical 3D object, if you want to find its volume, one of the way to understand is take the cross sectional area और उसको उसके परपेंडिकुलर हाइट से मेजर कीजिए. मतलब देखो, पहले चीज को समझते हैं. लेट्स से इसी को समझ लो, क्यूबॉइड समझ लो. क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब हमने इसको काटा है, ऐसे काटा, काटते ही आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है. इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा, सो दिस इज LW, इसका परपेंडिकुलर हाइट. अब एक और बात करते हैं. मान लो इसको हम, ये वनीला आइसक्रीम का क्यूब है, क्यूबॉइड है, हमने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया. अब आपको क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा? WH दिखेगा, और उसका परपेंडिकुलर हाइट ये बनेगा, तो WH इंटू L. दिस फॉर्मूला विल नेवर डिच यू. बट ये फॉर्मूला आप ऐसे मान लीजिए, ऐसा कुछ सुराही टाइप फिगर है, उसमें नहीं लगा सकते हैं. और सिमेट्रिक नहीं है ना, ये सिमेट्रिक पे बैठेगा ये वाला. जिसको दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसमें आराम से हम इस फॉर्मूले को बिठा सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं दैट एनी वॉल्यूम इज ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट. ट्राई टू लुक एट दिस UPS. If you see from this side, then it is, say this is W and this is W and this is H. So WH means ये एरिया, और इसका परपेंडिकुलर क्या बना? लेंथ परपेंडिकुलर बना. अगर हम इसको ऐसे काट देते तो हमें क्या दिखता? लेंथ इंटू विड्थ और हाइट आ जाता. आप ऐसे भी याद रख सकते हो LWH, और एल्स any shapes, even this will come in the case of, let's say, cylinder, although we are not learning now. ऐसे comparison करो. cylinder का volume क्या है? pi r square h. cylinder मतलब ऐसा लंबा, ये है हमारा सिलेंडर. सिलेंडर को अगर मैं खीरे की तरह काट के तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें क्रॉस सेक्शन क्या दिख रहा है? सर्कल का एरिया क्या है? pi r square. और pi r square जैसे होते हैं ना, नई नवेली दुल्हन के हाथ में चूड़ा रहता है, तो कितना? 1 2 3 pi r square, कितने pi r square? H pi r square. So cross sectional area multiplied by the perpendicular height. ये आपको कभी भी नहीं, बट ये आप इसमें नहीं लगा सकते हो, कोन में नहीं लगा सकते. कोन ऐसा हो जाता है ना, हाँ, कोन का हाइट नहीं, कोन का रेडियस डिक्रीज होता है. तो क्यूबॉइड, हैव यू अंडरस्टूड? क्यूबॉइड का जन्म हुआ है रेक्टेंगल से. When we are talking about area, we are on 2D. Our answers will always be in meter square, centimeter square and all. Correct? And this is the total surface area. This is the lateral surface area. जैसे कोई आपको ऐसे क्वेश्चन 9 में आता था कि there is a shop which has to be designed and all the sides have to be whitewashed. अब सामने, और गराज बना रहे हो, अब सामने की तरफ में थोड़ी वॉल होता है. उस वक्त जब आप कर रहे हो तो हम फ्लोर को भी व्हाइट वॉश नहीं करते, वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. So what all do you whitewash? The 2 walls, the ceiling and the back side. Right? Lateral नहीं आएगा उसमें कस्टमाइजेशन है. हाँ, उसमें कस्टमाइजेशन है. रूफ को हम व्हाइट वॉश करेंगे, दोनों वॉल्स को व्हाइट वॉश करेंगे, पीछे वाले को व्हाइट वॉश करेंगे, लेकिन जमीन पे फ्लोरिंग होता है और सामने खुला रहता है. ठीक है ना? तो इस सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्लियर. लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि एक्सिस ले लो और इसको ऐसे घुमाते जाओ. ओनली दैट एरिया क्वालिफाइज. क्लियर? क्यूबॉइड अगर पता है तो क्यूब भी पता है. क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबॉइड इन विच लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट. मैं तो याद नहीं करता हूं, सीधा इक्वल टू S. तो वो अगर LBH हुआ तो ये S क्यूब होगा. वो 2 into LB into BH plus LH होगा तो ये 6S स्क्वायर होगा. इज दिस फाइन?
और इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, इसका एस क्यूब हो जाएगा। क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब फेस इज ऑलवेज अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एस स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर, कितने स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो एस। आज का मैडम क्लियर, समझ में आया? देखो ए अंगद, नो वीडियो ऑन, आई विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द क्लास, आई हैव अ रूल। हाँ, अरे बाप रे, ये गाड़ी से क्लास दे रहे हो भाई साहब, वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो। ना 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 ना, क्लोज योर वीडियो प्लीज, यू विल हैव एस्फिक्सेशन एंड वॉमिटिंग थोड़ी देर बाद। भाई साहब वो गाड़ी में कैसे लोग मोबाइल देखते हैं, तुम देख पाते हो क्या? मेरे को तो 5 मिनट देखने से इधर दर्द आ जाता है। गाड़ी में बुक्स पढ़ते हो, जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। अच्छा नहीं, सुनील गावस्कर हैज नेवर रेड अ बुक एवर इन ट्रेन और बस। अगर आप सनी डेज पढ़ो ना, उसकी बुक में लोग कहते हैं सुनील गावस्कर की आंखें इतनी स्ट्रांग है होती थी कि ही यूज्ड टू सी द स्टिचेस ऑफ द बॉल एंड ही कैन प्ले। इतनी शार्प आईज है। क्रिकेट के बॉल में 6 सीम्स रहते हैं। ऑलवेज अवॉइड रीडिंग इन ट्रैवलिंग कार्स एंड ऑल, दैट्स नॉट गुड। हाँ, ट्रेन एंड ऑल इज ओके। कार का जो इनिशियल रेफरेंस है ना बहुत छोटा है। बस ऑल्सो समवॉट, बट जनरली अवॉइड ट्रेन एंड बस। गाड़ी में बैठ के मोबाइल देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, बहुत बड़ा। आज तो मेन चीज पाऊंगा यार क्लास में आज, ठीक है ना, अंगद का में। अच्छा ये हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया क्लियर। अच्छा, क्यूब क्यूबॉइड जैसे क्लियर कर रहे हैं, कुछ और बातें क्लियर करते हैं। ये सब आपको पता है ना, मिली सेंटी डेसीग्राम, मिली सेंटी डेसी। इसके बाद ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में लिख रहे हैं, ग्राम, लीटर, मीटर, फिर डेका, हेक्टा, फिर किलो, और फिर मारो। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेगा किलो मारो। तो ऐसे हम याद करें, मारो तो कुछ है नहीं, इसमें राइम बनता था, तो मिली सेंटी डेसीग्राम, ठीक है। यहां सब में दसिया का फर्क है, यहां से यहां 10 का फर्क है, यहां से यहां 10 का फर्क है, यहां से यहां 10 का फर्क है। इससे बड़ा होना शुरू हो जाता है, ये 10, ये भी 10, यहां से यहां 10, और यहां से यहां भी 10। So 1000 grams will make a kilogram, 1000 liters will make a kiloliter, 1000 meters will make a kilometer, 100 centimeters जो आपको आना चाहिए, centimeters and meters का definition आना चाहिए यहाँ पे, and also millimeters and meters. If you don't know, then you are not fit for grade 10. As simple as that. नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? अच्छा, उनको पता नहीं है। वैसे अगर आप जब इसमें जाएंगे ना, ग्रेड 12 में जाएंगे, 11 में जाएंगे, तब कुछ ऐसा हो जाता है। इसमें 18 ये माइनस में जा रहे हैं। चुप करो। कहाँ क्या होगा तुम लोग, कुछ नहीं। तो बदल माइनस में सर 10 टू पावर माइनस 3 दो कहाँ 10 टू पावर माइनस 3 दो बार है, ये 6 है। अरे एक्सा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो एटो। सब कुछ याद करो, अपने आप याद होगा यार। जब आदमी बीमार होता है, हर तरह का मेडिसिन खाता है ना, जब तुमको पास करना होगा तुम भी याद कर लोगे। टेरा 1 TB आप बोलते हो ना, 1 TB हार्ड डिस्क, टेराबाइट। जब आप बोलते हो गीगा 10 टू द पावर 9, गीगा का छोटा भाई होता है नैनो, और टेरा का छोटा भाई होता है पिको। When you study capacitance and all, ये सब आप खूब यूज करोगे, पिको फैराड, माइक्रोफैराड, 10 टू द पावर -6। -6 का उल्टा होता है मेगा, मेगावाट, 1000 मेगावाट प्लांट, 10 टू द पावर 6। फिर एक एंगस्ट्रॉन भी आएगा, वो अलग एक यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, ठीक है। तो लाइफ इज, ये तो डराने के लिए लिखा, ये आता है कि नहीं आपको?
व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, चलें थोड़ा आगे। अच्छा, एक और चीज आपको बहुत जरूरत होगा, विच चिल्ड्रन डू अ लॉट ऑफ गड़बड़, द डेफिनेशन ऑफ लीटर, ये सब सीखो। लीटर, व्हाट इज 1 लीटर? 1 liter is the volume of a cuboid. 1 liter is the volume of a cuboid. 1 liter is the volume of a cuboid whose cube, rather, not cuboid. 1 liter is the volume of a cube whose edge is 1 dm. इंडिया में हम लीटर्स में प्रॉब्लम बहुत करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं, whereas if you go to things like if you follow Cambridge curriculum, they'll do a lot in centimeter cubes. Okay, लीटर का प्रचलन इंडिया में बहुत है. So what is 1 liter? 1 liter का मतलब है 1 liter is the volume of a cube of S equal to 1 dm. ये समझ में आया? इस क्यूब में पानी हम कितना भर सकते हैं? 1 लीटर भर सकते हैं. ये है 1 लीटर का डेफिनेशन. अब 1 लीटर को निकालने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब है 1 लीटर शुड बी, ये क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 1 dm इंटू 1 dm इंटू 1 dm. अच्छा आनिए, आप अकेले क्यों नहीं आए? मम्मा क्यों आई साथ में? हो जाने का डर है क्या? कोई ले लेगा, किडनैप कर लेगा? देन हाँ, आप निकलो. आप जितना उस प्रोटेक्टिव में रहोगे ना, उतना आपको बीमारी होगा. बीमारी मींस, सी इफ वी sometimes you should go to dusty area. What is the reason? Your immunity builds up. The more you remain protected, the more you will be into problem. Similarly, the same thing is for protection in terms of घर. अभी आप बड़े हो रहे हैं, ग्रेड 10, एक ही टावर में ऊपर से नीचे आने के लिए मम्मा क्यों चाहिए? मैं तो वही घूम रहा है तभी सर से, वही मम्मा कि पहली बार आ रहे हैं, अगर सर ने बोल दिया नहीं अंदर मत घुसो तो कैसे देख पाए यहाँ पे? मतलब बाद में आना था मम्मा. आप बोलो ना, आपका क्लास है, दिल खोल के आइए. मैं कुछ गलत बोला? और नहीं तो क्या. हाँ, अंगद तो गाड़ी में है. अंगद तो सोच रहा है आज कुछ महान हो जाएगा. अच्छा, तुम लोगों को जो सीक्रेट पार्ट पढ़ा है वो पता है ना, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया? हाँ, अंगद तो अभी ज्वाइन किया है ना, एक सीक्रेट पार्ट भी हमने पढ़ लिया है चैप्टर का. तो ठीक है, तो 1 dm 1 dm 1 dm. हाँ, 1 dm कितना होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स? मिली सेंटी डेसी. 10 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स, है ना. 10 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 cm क्यूब. ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम आता है हॉस्पिटल में, कटोरों में सूप बांटने का एक प्रॉब्लम आता है. उसमें सूप आएगा लीटर में, दिया जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि इस पेशेंट को 1 लीटर सूप थोड़ी पिलाओगे. जो छोटे छोटे कप्स आएंगे ना, वो किस शेप में आएंगे? हेमिस्फेरिकल. हाँ, तो उसमें उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और जो ला रहा है उस सूप को वो लीटर में लाएगा, वो अलग बात है. अभी प्रॉब्लम आने, और हम सूप में आपका कटोरा पूरा नहीं भरते हैं, 80% जैसा ही भरेंगे, यानी कि वॉल्यूम का भी 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा. उतने ही ना पियोगे, पूरा भर के थोड़ी देते हैं तुमको. हाँ, अब तुम्हारे शादी के दिन जब लड़की वाले तुम्हें देखने गए, मॉडर्न हो जाएगा ना जमाना, तुम थोड़ी लड़की देखने जाओगे, लड़की वाले तुम्हें देखने आएंगे. तुम चाय का कप लेके आओगे ऐसे ट्रे में, फिर लड़की पूछेगी पिक्चर देखने जाते हो? हाँ, कभी कभी मम्मी पापा के साथ जाता हूँ. तो उस वक्त चाय भर भर के थोड़ी लाओगे अपने सास ससुर के लिए, कम कम लाओगे ना, वरना तो वहां से यहाँ आते आते ही सब Yusha is having laugh of her time. ठीक है, ये क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब देखते हैं what is the difference between meter cube. Now let's talk about 1 meter cube. 1 meter cube. 1 meter cube का मतलब कितना है बेटा? 1 meter multiplying by 1 meter multiplied by 1 meter. क्या आप क्लियर हो इससे? ठीक है ना. हर एक मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. इसको फिर क्या लिख सकते हैं? 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब आप पूछोगे सर आपने ये 10⁶ नहीं लिख के ऐसे 1000 इंटू, अरे देख समझ, पहले लिख तो पिछले साल भी रहा था, याद थोड़ी है, समझ पहली बार. 1000 इंटू 1000 है ना, 20 20 20 6 जीरोस हुए,
हाँ, तो मैंने 10 to the power 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1000 लीटर, ये 1 लीटर है कि नहीं? अभी तो निकाला तुमने। 1 मीटर क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये ऐसे, लीटर में है तो ऐसे। अब इसका मीनिंग समझो तो ही लाइफ पर याद रहेगा, ये लिखने से याद नहीं रहेगा। क्या आप कपड़े स्टिच करने के दुकान में गए हैं? गर्ल्स, बॉयज, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन। वहां पे क्लॉथ कैसे बिकता है? 1 मीटर के स्टिक में मेजर करते हैं ना, डंडा वाला। थिंक ऑफ ए क्यूब whose edge is that 1 meter stick. वो 1 मीटर का स्टिक देखा है कि नहीं कपड़े के दुकान में? तुम तो 100% नहीं देखे होगे। Have you seen a cloth measuring stick? Very good. How many of you have seen a cloth? आप रीड एंड टेलर जिस भी दुकान में जाओ, गर्ल्स इफ यू गो फॉर स्टिचिंग योर कुर्तीज एंड ऑल, हाँ बेटा वैसा लंबा रहता है, गले से घुसा दो तो मौत होती है जिसमें ऐसा लंबा लोहे का, देखिए हो ना, वो 1 मीटर का है। उस 1 मीटर साइज का एक क्यूब बनाओ तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। उसमें अगर ये 1 लीटर है तो ऐसे 1000 बोतल का पानी आप खाली कर पाओगे, यही उसका डेफिनेशन है। 1 मीटर क्यूब मींस 1000 लीटर। अगर आपने 1 मीटर क्यूब का एक टैंक बनाया, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, उसमें कितने बोतल पानी खाली हो सकते हैं? 1000 बॉटल्स। ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। What is 1 meter cube? 1 meter cube is the volume occupied for 1000 liters. 1000 liters is equivalent to 1 meter cube. Clear? ये चीज जरूरी है, देख लीजिएगा, ये तो बहुत आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अन्य आज का मैडम एनी इश्यूज ऑन दिस वन? सब भाई ठीक है तो सब आगे बढ़े गाड़ी। हाँ अन्य अगले दिन तुम भी यहीं आती हो। हाँ वो जो डॉग दिख रहा है ना उस जगह पे आप रहती हो उससे, और डॉग वाला इंसान इधर बैठता है। चले आगे। कौन वो आज रात टेंशन में सोएगा, क्या हो गया इसका। उसका तो बेस्ट है, उसके लिए क्या करो ना। अंगद पता है उस दिन क्या हुआ? छोड़ यार कोई बड़ी बात नहीं है बस। हाँ क्या हो? इसके साथ ट्रीटमेंट है तरपो ट्रीटमेंट, थोड़ा छोड़ के छोड़, उस दिन ना पता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट। Our next shape would be a right circular cylinder. अब इसको राइट सर्कुलर क्यों बोला गया है बेटा? टीपॉट का वो स्प्राउट देखे हो ना, टीपॉट का स्प्राउट जो होता है, बचपन में पोएम पढ़ा था ना, आई एम अ लिटिल टीपॉट बिग स्प्राउट, दिस इज माय हैंडल, दिस इज माय स्प्राउट। तो वो भी सिलिंड्रिकली होता है, पर उसे हम राइट सर्कुलर नहीं कहते हैं। राइट सर्कुलर क्वालिफाई करने के लिए, if you want to qualify as right circular, then there is a criteria. The criteria is that the axis should be at right angles to each other. जैसे यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस मान लो, और ये एक एक्सिस है, इनके बीच में राइट एंगल होना चाहिए, तभी इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। आई बात समझ में? आइए, सबसे पहले इसमें एक कर्व सरफेस होता है, जिसे कर्व सरफेस, और इसको हम लैटरल सरफेस नहीं बोलते हैं, बोल भी सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज द लैटरल सरफेस, बट कर्व्ड इज मोर गुड बिकॉज ये कर्व जैसा है। इसको समझने के लिए चूड़ा समझिए, चूड़ा, नई नवेली दुल्हन के हाथ में जो चूड़ा होता है ना, वो चूड़ा समझिए, ठीक है। अब वी टॉकिंग अबाउट द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे बना हुआ है? एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी। हम चूड़ी के अंदर नहीं घुस रहे हैं, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, मतलब हम एक एक चूड़ी के सरकमफरेंस पे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक चूड़ी है, एक चूड़ी कितना हो गया? 2 पाई आर। ऐसे एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, चार चूड़ी, कितने चूड़ी? एच चूड़ीज। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जहां ये बेटा हो गया एच और ये हो गया आर। क्लियर? चूड़ा चूड़ा चूड़ा, एच चूड़ास। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर एक ढक्कन, नीचे एक ढक्कन, बोले तो पाई आर स्क्वायर प्लस चूड़ा चूड़ा चूड़ा। हाँ, दो टाइप का आर क्यों लिखते हो? सब वेदांत के लिए होता है, तुम ही हो। और एक और पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इसी को आशका मैडम क्लास 9 में रखती थी, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर।
रटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यूज योर हेड, अगर हम डस्टबिन बना रहे हैं जैसे स्टेशनरी डस्टबिन, तो ऊपर नहीं होता है उसमें। हाँ, जैसे बोल दिया डस्टबिन को पेंट करना है, बाहर से पेंट करेंगे अंदर से भी पेंट करेंगे, ऊपर में कुछ नहीं रहता है, ओपन फेस डस्टबिन बना रहे हैं। नहीं, मेरे तो माइनस करने की जरूरत नहीं है ना, उसमें ये और ये एक ले लो, दो लेने की। हाँ। कौन सा चीज बताओ? कर्व सरफेस एरिया, हैव यू अंडरस्टूड? कर्व सरफेस एरिया में ना बेटा कैसा है, देख ये है सिलेंडर मेरा। कर्व सरफेस एरिया में मैं एरिया है ना 2D है, मैं अंदर नहीं घुस रहा हूं, मैं सिर्फ बाहर हूं, तो इसको एक चूड़ी समझ लो। तो इस चूड़ी का क्या हो गया? सरकमफरेंस। ये एक और चूड़ी आया, उसका सरकमफरेंस, एक और चूड़ी, एक और चूड़ी, हर चूड़ी का सरकमफरेंस कितना है? 2πr, 2πr, 2 2πr, 3 2πr, 4 2πr, 5 2πr, करते करते दुल्हन का चूड़ा बन गया। कितने 2πr? h 2πr, 2πr। और यो चूड़ा में अपन ऊपर से एक ढक्कन लगाएंगे πr², यो नीचे एक ढक्कन πr², 2πr²। फिर थोड़ा कॉमन खेल लेंगे और फिर आ गया हमारा 2πr/h²। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, भणो चोखो है, छोड़ा। आगे बढ़े। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में आप सलाड को याद कीजिए, खीरा 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 इंटू एच खीरा। ईच खीरा इज हाउ मच? πr²। कितने खीरे हैं? 1 खीरा, 2 खीरा, 3 खीरा, 4 खीरा, 5 खीरा, h। और अगर हम πr² को देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इंटू द परपेंडिकुलर हाइट। वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एवरी सिमेट्रिक होने से क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू द परपेंडिकुलर हाइट। आई बात समझ में? अब इसके साथ थोड़े से गेम होगा, देखते हैं गेम क्या है। क्लियर? ना अभी देखते हैं, चलिए। CS क्या बेटा? IPL में होता है, ये CSA है। CSA बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट। इसको जो भी लिखा, इसको मैंने लिखा क्या पता है? लाहौल विलाकुआ। तुम सोचो ना ये वॉल्यूम क्या होता है, तुम इतना इसके पीछे क्यों पढ़ते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? सिमेट्रिकल जो भी। तुम ये छोड़ दो, तुम ये याद करो बेटा, इतना में तुम्हारी नैया ठीक जाएगी। πr², इसको छोड़ दो। उतना खाइए जितना डाइजेशन का कैपेसिटी है, नहीं तो घर में उल्टी होगा ना। ठीक है, आइए एक नया चीज देखते हैं। अभी सिलेंडर से हमें कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आते हैं। तो मान लो हमारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को थोड़ा सा ऐसे रोल कर देते हैं, ऐसे ऐसे रोल कर देते हैं और थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और ये सिलेंडर को अभी बना देते हैं हमारा क्रिकेट के मैदान का, इसको रोलर बना देते हैं, ठीक है। हाँ, तो सिलेंडर रोल करके 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 क्रिकेट के मैदान को रोल करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक बार जब सिलेंडर रोल करेगा तो हम सिलेंडर इज सिलिंड्रिकल, हाउएवर दिस इज रेक्टेंगुलर। समझ में आ रहा है? तो जो सिलेंडर की हाइट होगी, जो सिलेंडर की हाइट होगी, वही क्रिकेट पिच का विड्थ होगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अरे सिलेंडर रोल हो रहा है, सिंपल बात। तुम इतना ही देखो ना, सिलेंडर जो है उसका जो हाइट है वो क्रिकेट पिच का विड्थ होगा। एक राउंड जब सिलेंडर मारता है, एक राउंड जब मारता है तो सिलेंडर जाता है 2πr। कितना? एक राउंड में कितना जाता है? 2πr जाएगा ना। अरे दिस इज लाइक वन चूड़ी, एक चूड़ी एक राउंड लेगा तो कितना जाएगा? 2πr। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है ना, ये यहां पे लगा दिया, ये कैट के ऊपर में। एक राउंड जब ये मार रहा है तो एक सरकमफरेंस नहीं जा रहा है। एक राउंड कितना है इसका? एक सरकमफरेंस है कि नहीं? आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी दैट डम्बो। व्हाट इज वन राउंड ऑफ इट? वन सरकमफरेंस। तो मैं कैट के मुंह से कैट के यहां तक आने में कितना डिस्टेंस होगा? एक सरकमफरेंस नहीं होगा? बोल के ना सारा पानी मुंह में मार दूंगा, लेकिन समझ में आया? हाँ, तो 2πr हुआ।
ऐसे मान लो कि इस पिच को यहां से यहां तक रोल करने में ये n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मारता है। Length 2 pi. हाँ, तो इसका लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एन, और इस पिच का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन इंटू एच। अल्टीमेटली तो ये रेक्टेंगल ही है ना। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो यू आर नॉट फिट फॉर ग्रेड 10, यू फिट फॉर ग्रेड 8। मतलब जब तक ये वाला स्लाइड चल रहा था बड़ा तोते की तरह बात कर रहे थे, और ये समझने में बत्ती गुल हो गई। ये समझ में आ रहा है? एक राउंड मारोगे 2 पाई आर जाओगे, 2 राउंड मारोगे 2 पाई आर जाओगे, n राउंड्स में तुमने इसको रोल किया, तो हाउ मच डिड यू गो? एंड जस्ट थिंक, एरिया इज 2D, 2 पाई आर इज 1D और नॉट। एक ही तो डायमेंशन है इसमें r, और ये एक 1 डायमेंशन, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया ही मिलेगा ना। आज द कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ? ठीक है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस में ये पिच को रोल करेगा? आइए, n नंबर, तो पिच का एरिया निकल गया। अब इसमें एक और चीज देखते हैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। आ जाओ, आसान आसान प्रॉब्लम थोड़ी आई है तुमको। ये ले लो, ये है नेस्ले मिल्कमेड का डब्बा। क्या है? नेस्ले मिल्कमेड का डब्बा। बिट्टू थोड़ा देखें। हाँ, हमारा बच्चा समझता नहीं है ना, तो उसको समझाना पड़ता है। ये है सिलेंडर, इस सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर है। कोई भी सिलेंडर के लेबल को खोलने से रेक्टेंगल ही मिलता है। समझ में आया? तो चलो अभी उसी चीज को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे ये है मिल्कमेड का डब्बा। अब इस मिल्कमेड के डब्बे में हमें लेबल बनाना है, लेबल। ठीक है, तो आओ इसका लेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इस मिल्कमेड के डब्बे का लेबल बनाते हैं। तो इसकी लेबल कुछ यहां से खुलेगी, है ना, ऐसे ऐसे। ये इसका लेबल है। 1 राउंड पूरा ऐसे लपेट लोगे तो टपक करके आ जाएगा। What is the width of this label? The height of the cylinder. And what is this? 2 pi r. इस बार लेकिन n नहीं होगा, क्योंकि हाँ, टॉयलेट पेपर का रोल नहीं बना रहे हो, लेबल बना ले हो। हाँ नहीं, वो बाद में। लेकिन ये समझ में आया? तो अब ये वाला पोर्शन कितना क्वालिफाई करेगा? ये h पे क्वालिफाई करेगा, ये 2 पाई r पे क्वालिफाई करेगा। क्लियर है? तभी ना लपेटने से 2 पाई r h होगा। दिमाग बैठ रहा है अभी? लेकिन ऐसा लेबल जो होगा ना, वो एज टू एज आके मिलेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम ऐसे नहीं देगा। डिजाइन अ लेबल विथ 2 सेंटीमीटर ओवरलैप। हम लोग जब बनाते हैं थोड़ा सा ओवरलैप रखना पड़ेगा ना, चिपकेगा। तो ओवरलैप को आप हमेशा इसमें ऐड कीजिएगा, +2 सेंटीमीटर, मतलब जो ओवरलैप होगा। देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द पेपर दैट इज रिक्वायर्ड। How many of you understood this concept? There will always be an overlap. यार रखी लो पेपर हाथ में यार। एक होता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज टू एज। लेकिन हम लोग जब चिपकाएंगे थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप होगा, तो ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है ना? जो ओवरलैप को आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो। दीज आर सिनारियोज विच यू मे गेट। ये क्लियर हुआ? आइए अब एक और चीज देखते हैं, और मजेदार चीज। सिलेंडर में ही बच्चों का सबसे ज्यादा गड़बड़ी होता है। आ जाओ, ठीक है। इस बार बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर। और नो, ऐसे अच्छा नहीं होगा फिगर। रुको, हॉलो सिलेंडर के लिए जैसे हो गया तुम्हारा फ्लावर वास टाइप आइटम। अब यू अंडरस्टैंड? हॉलो है तो इसमें मटेरियल, अगर बोले कोई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज से वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, तो वॉल्यूम कैसे? इसमें अभी 2 मेजरमेंट आएंगे। एक आउटर रेडियस आएगा, हाँ इनर रेडियस नहीं आएगा। बच्चा वैसे तुम्हें थोड़ी देगा, तुम क्लास 10 में हो, तुम्हें थिकनेस बता देगा।
हाँ, तो आउटर रेडियस से अगर हम थिकनेस निकालेंगे तो इनर रेडियस आएगा, लेकिन चपरगंजू कहां करोगे पता है? आउटर डायमीटर से इनर डायमीटर निकालना है तो 2 थिकनेस माइनस करना पड़ेगा। डायमीटर से जब इनर डायमीटर आते हो ना तो यहां से भी कटेगा, यहां से भी कटेगा। When you are doing it with radius, it's only r0 minus t. When you are doing with the outer diameter, to get the inner diameter, then it is d0 minus 2t. Please take care of that. And then my volume of the material use. अब material कितना use किए हो? इतना ही तो material use किए हो ना, इससे ज्यादा तो material use नहीं हुआ है। This volume will be outer volume minus inner volume. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें पाई और एच तो कॉमन होगा, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर होगा। समझने की कोशिश करो। आउटर सिलेंडर कितना है? पाई आर ओ स्क्वायर एच। इनर सिलेंडर कितना है? पाई आर आई स्क्वायर एच। तो पाई और एच तो कॉमन ही हो गया ना, ड्रैकुला की तरह उसको बाहर ले लो। और ऐसे फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां थोड़ा सा अलजेब्रा भी दिख रहा है हमें, समझ में आया? इससे ज्यादा और सिलेंडर में कुछ बोलने का नहीं था मुझे, बेसिक एज ए सिलेंडर। लेकिन ग्रेड 10 में तुम कॉम्पोजिट फिगर्स देखोगे, सिलेंडर जिसके सर पे स्फीयर, वैसा टाइप। तो पहले सिलेंडर को पूरी अच्छी तरह समझ लेते हैं। हो गया भाई साहब सिलेंडर? यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज आवर बर्थडे कैप। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, तुम लोग क्या लिखते हो? एचबीडी। एचबीडी 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 का मतलब क्या है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे करते हैं। कौन कौन जब ग्रेड 12 में पढ़ोगे ना, कौन क्या है पता है? कौन एक्चुअली एक पॉइंट जो ग्रेजुअली लेंथ और रेडियस का रेशियो रहता है। इफ यू टर्न अ पॉइंट and the point slowly increases its radius over a length proportionally, you get a cone. इसी से तो कैलकुलेट इसके, इसलिए तो इसका वॉल्यूम हम आपको और बाकी तरह से नहीं समझा सकते। कोन्स वॉल्यूम, सो इन कोन वी हैव गॉट 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। कोन थोड़ा रुलाएगा आपको। कोन में एक होता है कोन की हाइट, एक होता है कोन का रेडियस, और एक होता है कोन का स्लैंट हाइट। ठीक है भाई साहब? और ये तीनों बन रहे हैं, पाइथागोरस जैसा रिलेशन बन रहा है। ये r होता है, ये h होता है, और इस स्लैंट लाइट को हम l बोलते हैं। l इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है? कोन का वॉल्यूम होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई टेक्निक नहीं है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। वन ऑफ द वे टू थिंक ऑफ अ कोन इज, cone has been cut out from a cylinder. Cone has been cut out from a cylinder. आप एक सिलेंडर सोचो और उस सिलेंडर से आपने इस कोन को कट किया है 1 1 1, अनदर बैक साइड में 1/3 ऑफ सिलेंडर है। समझ में आ रहा है? कोन का जन्म सिलेंडर से ही हुआ है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ऐसे देख लो। स्पैटियल थॉट प्रोसेस बहुत कमजोर है बच्चा लोगों का, क्या करें। कोन का जन्म ऐसे हुआ है, देखो। वन टू बैक साइड 1/3 ऑफ सिलेंडर है। क्लियर? आइए कोन का सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई r इनटू द स्लैंट हाइट l। Total surface area of the cone is whatever is the curved surface area at the base, which is a pi r square. So you get a pi r common into L plus R. ध्यान रहे, a tent has been designed in which people will be sleeping on the grass. वहां पे टेंट में लेकिन कर्व सरफेस एरिया ही अप्लाई होता है, क्योंकि नीचे आप कुछ और नहीं लगाने वाले हो। However, a traffic diversion जो होता है ना, कॉनिकल डाइवर्शन रहता है ना, ऐसे जाइए वैसे जाइए। अ ट्रैफिक डाइवर्शन आर्टिकल हैज बीन मेड, उसमें लेकिन एंटायर प्लास्टिक है, उसमें नीचे वाला क्वालिफाई करेगा। क्लियर? अभी बहुत इजी कर दिया। पहले कोन का फ्रस्टम का प्रॉब्लम आता था। फ्रस्टम मींस स्टील का ग्लास देखे हो जिसमें हम खाना खाते हैं। फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज लाइक अ लैम्प शेड।
यहाँ काट दो तो ये लैम्प शेड बनता है। ऐसे सोचो थोड़ा सा, जो लैम्प शेड्स हम लगाते हैं ड्राइंग रूम में वो कैसे बनता है? दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, FRUSTRUM, फ्रस्टम। फ्रस्टम मीन्स यू आर एक्चुअली चॉपिंग ऑफ दिस पोर्शन। उसका एरिया वॉल्यूम निकालने में हालत टाइट होता है। उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है? ऊपर वाला कोन माइनस टॉप वाला कोन जो कट के चला गया, तो जाके उसका वॉल्यूम आता है। हाँ, छोटे वाले का रेडियस फिर प्रोपोर्शनल, उसमें फिर सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है यहाँ पे। सी सिंस यू सेड, वो इतना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होता है, उसको भी सीबीएसई ने निकाल दिया है। ऐसा आएगा, यहाँ पे आपका एक और आर बनेगा, सम अनदर आर विल बी फॉर्म्ड एंड नाउ यू गेट अ सिमिलर ट्राइंगल। इतना हाइट, टोटल height, this R. So you use similar triangles ratio, then you try to find this, then you take out this वाले कौन का। वैसे ये अभी सिलेबस में नहीं है आपके पास, ठीक है। एक प्रॉब्लम आता है देनेस 10th में रहता है, हनुमप्पा एंड जंगप्पा करके, दे मेक स्वीट्स इन द शेप करके, वो बहुत बार आता है, ठीक है। कौन अब आ गया, कौन का ये हो गया समझ, और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। चलें आगे, आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा अभी स्फीयर। स्फीयर है सर्कल का 3D, स्फीयर है सर्कल का 3D, ये स्फीयर है। स्फीयर में बड़ा मजेदार है, स्फीयर में आपको एक ही मेजरमेंट चाहिए, इधर से भी रेडियस है, इधर से भी रेडियस है, समझ में आया। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और स्फीयर का सरफेस एरिया एक ही होता है, इसमें और कोई हाफ सरफेस, कर्व सरफेस नहीं, पूरा एक ही सरफेस एरिया होता है। डू यू गेट टू सरफेस एरियाज इन अ स्फीयर? नो, यू कैन नेवर गेट। अंधा करके अगर आपको स्फीयर देके बोलो बेटा टॉप पकड़े हो कि बॉटम पकड़े हो, तुम समझ पाओगे? कुछ नहीं, शेप इज वन ओनली। और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। और इसी तरह इसका एक मौसी का बेटा भी है जिसका नाम है हेमिस्फीयर। लुक्स लाइक अ बर्गर, यू नो, लाइक दिस, सैनिक की टोपी जैसी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्वालिफाई करेगा रेडियस और रेडियस, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, नाम ही है हेमिस्फीयर, तो इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल इसका हाफ है, बिल्कुल इसका हाफ है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई r स्क्वायर के साथ ये नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है ना, उसको भी ऐड करेंगे, तो ये बन गया 3 पाई r स्क्वायर। हाँ बेटा, समझ में आया? हाँ सपोज शेप्स, तो बोलिए तो क्यूबॉइड कहाँ? वो आप जब इंटीग्रल कैलकुलस सीखेंगे तभी। इसमें भी कैसा है? अ पॉइंट व्हिच प्रोपोर्शनेटली एक्सीड्स टू द मैक्सिमम एंड देन अगेन, बेसिकली इट्स एरिया ऑफ अ sheet. These are all circles. When you come to this part, the area almost becomes 0. Then a small circle is born. So you will add that many circles which you are getting till here and multiply by 2, or again you will reduce from here. समझ में आया? अगर एक आपको 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से लोगे तो पूरा भरना नहीं है, आपको उसका मैक्सिमम। हाँ, इतना तक जाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने से हो जाता है ना बेटा, 2 बार करने की जरूरत नहीं है ना। ब्रेड का जो टुकड़ा होता है वो स्क्वायर होता है, 2 बार मापने की जरूरत नहीं, एक साइड नापने से दूसरा साइड पता चलता है। समझ में आया? अच्छा, अब हमारे इस चैप्टर में थिंग्स दैट वी विल बी हैविंग आर, we will have lot of composite shapes. Composite shapes. Composite cake क्या होता है? वो केक जिसमें आधा चॉकलेट आधा वनीला। So composite shape. Composite shapes will be something like this. जैसे मान लो हमें किसी ने बोला डिजाइन एन एंटीबायोटिक कैप्सूल, तो एक एंटीबायोटिक कैप्सूल बनाना है। एंटीबायोटिक कैप्सूल कैसा होता है? ऐसा, और उसके मुंह के साइड में एक गोलू रहता है और ये साइड में भी एक गोलू रहता है ना। सो एन एंटीबायोटिक कैप्सूल इज 1 सिलेंडर, 1 स्फीयर।
हाँ नहीं, टू हेमिस्फीयर नहीं बोले, टू हेमिस्फीयर जनसाधारण बोलेगा, जो आगे देखता है वो एक स्फीयर देखता है दोनों साइड से, टू हेमिस्फीयर्स दोनों साइड रहेंगे ना, तो दो बार करने की क्या जरूरत है, वन सिलेंडर एंड दैट्स। फिर ऐसे भी शेप्स आएंगे, स्फीयर और स्फीयर के ऊपर है कोन, ऐसे शेप्स आएंगे। फिर एक टाइप के प्रॉब्लम आता है जहां पे हमारे पास एक क्यूबॉइडल आर्टिकल होगा, ये सब हम करेंगे अगले क्लास में आराम आराम से। क्यूबॉइडल आर्टिकल है और इस क्यूबॉइडल आर्टिकल को हमने मेल्ट किया, इसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बनाए, है ना। ये क्यूबॉइड आर्टिकल में चॉकलेट था, इसको हमने मेल्ट किया और छोटे छोटे हमने इससे क्या बनाए, बॉल्स बनाए। तो हमें किसी ने पूछा कि उस एक एक बॉल का रेडियस हमें दे दिया और हमें पूछा आप कितने बॉल्स बना सकते हैं, हाउ मेनी सच कैडबरीज बॉल्स कैन यू मेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड। नाउ इन दैट केस वी ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ मटेरियल, ऐसा तो है नहीं ना, इसको पिघलाने से कढ़ाई में भी तो थोड़ा लगा रहेगा, बट कंसीडरिंग 100% एफिशिएंसी इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, LBH हो जाएगी, है ना। दिस LBH हैज टू बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सम n नंबर्स। तो ये n निकालने का भी आपको टेक्निक आना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, एक और टाइप के प्रॉब्लम्स जो कि सर उसमें हम वर्ड तो बहुत लिखेंगे ना। हाँ इसमें भी कुछ घुमाया हुआ रहेगा, ठीक तो यही है, मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। एक और टाइप का प्रॉब्लम जो आता है कुछ इस तरह आएगा, यू मस्ट हैव सीन ना कॉफी एंड टी डिस्पेंसिंग, जैसा ट्वीक खुल के ऐसे चाय देता है ना, ऐसे ये वैसा है। व्हाट इज द शेप? सिलेंडर। इससे आपको बोलेगा कि आप पेशेंट लोगों को क्या बांटिए, ऐसे कप्स में, ऐसे कप्स में हॉस्पिटल में आपको सूप बांटने देगा पेशेंट को, और बोलेगा कि हर पेशेंट को आप कुछ कुछ 70% तक ही कटोरा भर के सूप दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्राइटेरिया ऐसा होता है, पाई, इसको अगर मैं आर मानू, R²H इज इक्वल टू n नंबर ऑफ कटोरास इंटू 2/3 पाई R³ इसका 0.70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पूरा खाली करेंगे तो ऐसे n नंबर ऑफ कप्स में 70% सूप ही हम दे पाएंगे। ऐसे समझ में आया? हाँ, किस्मत बहुत अच्छा है। यही ICSE में जाओगे वो क्या बोलेगा लास्ट में पता है, इसका नोजल एक रहता है, नोजल के नीचे जब सूप चला जाएगा आप सूप खाली कर पाओगे? So they will say that the nozzle is at a height of so much from the bottom. How much of soup can you decant? ये CBSE नहीं देता है, उसमें और अच्छा है। तो उस नोजल तक के हाइट का सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकाल देना पड़ेगा। Are you understanding what I'm trying to say? If you have a can from which you are giving soup to people, if the soup level comes below the nozzle, अब तो और सूप नहीं निकलेगा ना, इसलिए नोजल एकदम नीचे रहता है। तो मान लो वो नोजल की हाइट आपको दे दिया, and they will say how much of soup can you pour? You can't consider the full volume. You have to consider the whole volume minus that nozzle. अभी है बेटा थोड़ा 5 मिनट और है, छोड़ देंगे टाइम से, चिंता मत करो। तो उतना सा वॉल्यूम आपको निकाल देना पड़ेगा। फिर बाकी वाला एरिया, अंगद आप अब तक तो घर पहुंच चुके होंगे ना, अभी भी गाड़ी में ही है क्या बेटा, मतलब इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं? हाय अंगद। सर ऑलमोस्ट देर मतलब घर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? हेलो। हाँ, ये इतने देर से आराम से कैमरा बंद करके क्लास अटेंड कर रहा है। इतना देर नहीं लगता है ना ग्लेंडल से घर तक आने में, लगता है क्या? नहीं, हाँ पैदल चलने से भी अब तक घर पहुंच चुका होगा पेबल सिटी, है ना। हाँ नहीं, ग्लेंडल उतना दूर नहीं है, कभी घर से बाहर भी निकला करो। हाँ हाँ, जितना भी नहीं, आधा घंटा, हमारा क्लास 1 घंटा हो चुका है। ये बाकी टाइम आराम से बंद करके मजा ले रहा है, लेकिन इसे पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ूंगा ना इसके बाद, ना। और जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा इसके आने से पहले का वो याद है ना। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? अनदर प्रॉब्लम दैट वी कैन गेट इज, जैसे एक और बता देता हूं और फिर छोड़ देता हूं आपको। जैसे मान लो ये बताना क्या होगा। हाँ, ये ऐसे है और ये सर
हाँ देखो, नाउ टच योर हार्ट एंड टेल मी व्हेन डिड यू रीच होम। दिल पे हाथ रख के बोलो बेटा। Sir, like 10 seconds ago. अच्छा 10 सेकंड से को, बड़ा अच्छा बेटा। कहाँ से बेटा, मतलब वाइजैक से आ रहे थे क्या? No. अच्छा, मुझे लगा वाइजैक से आ रहे थे शायद। अच्छा ये ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ये है पेंसिल डिजाइनिंग प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी। तो पेंसिल में आपको कंपोजिट शेप क्या दिख रहा है, सिलेंडर है और कोन है। कभी कभी पेंसिल के, मेरे जैसा आदमी जो थोड़ा सा जिसके अंदर शैतानी ज्यादा है वो आपको सिलेंडर नहीं देगा, पेंसिल के पीछे साइड देखिए थोड़ा सा ऐसा होता है, तो एक हेमिस्फीयर भी क्वालिफाई करेगा उसमें, है ना। देखो ना इसको देखो अच्छी तरह से, ये सामने से कोन है, बीच में सिलेंडर है और पीछे थोड़ा सा, हाँ और पीछे देखो ये एकदम इस पे गुड फिट भी नहीं है। हाँ तो ऐसे बोलेगा इट्स रेशियो इज प्रोपोर्शनली द रेडियस रिड्यूसेस टू 20% ऑफ इट्स रेडियस। तो ऐसे, तो एंड ऑफ द डे हैव यू अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ, दीज आर द टाइप ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स दैट विल गेट। एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम आता है, एक और बता देता हूँ ठीक है, और फिर करेंगे अगले क्लास से। एक और प्रॉब्लम ऐसा है कि मान लो see your imagination has to be good। अगर आपका इमेजिनेशन ठीक नहीं है ना तो आप फंस जाओगे। ऐसा एक है, ये एक हम इसे गिफ्ट आर्टिकल बनाएंगे और गिफ्ट आर्टिकल ऐसा होगा, इसका गिफ्ट आर्टिकल ऐसा होगा कि मान लो इसके सरफेस से ऐसा एक पोर्शन स्क्रैप करके निकाल दिया रहेगा। इट्स लाइक ए न्यू क्यूब ऑफ वनीला आइसक्रीम, जहां से हमने एक स्कूप निकाल लिया। मजेदार चीज है लेकिन एक स्कूप निकाल दिया। इसका सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करने को ही बोलेगा। अब देखो इसका सरफेस एरिया कैसा, हाँ इसका सरफेस एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूछो, नहीं पूछो क्या। जो वनीला ब्लॉक दिया हुआ है, हाँ वो क्यूब पे देखना है, जितना हमने स्कूप जितना आप स्कूप किए हो उसका सरफेस एरिया नहीं होता, उसका वॉल्यूम होता है बेटा। हाँ वो मुंह पे मारने से थप्पा करके गिरेगा आपका, है ना, क्वांटिटी है। तो सबसे क्या निकालना है, ये जो बाकी वाला शेप आपका रह जाएगा ना उसका सरफेस एरिया निकालने हमें बोला है अभी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है। अब जो बाकी वाला क्यूब है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 फेसेस का सरफेस एरिया निकालेंगे, 5 फेसेस, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, कोई बात नहीं। इसमें से हम क्या करेंगे, इस क्यूब का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसमें से हाउ मच डेंट हैपेंड, द डेंट हैपेंड व्हिच इज इक्वल टू द, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ। टोटल सरफेस एरिया में यू आर इमेजिनिंग एज इफ ये टॉप वाले साइड में है। टोटल सरफेस एरिया से सबसे पहले आप क्या करो, द मेन थिंग जो है पाई आर स्क्वायर एक निकलना पड़ेगा, प्लस द CSA ऑफ द, वेरी गुड प्लस द CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। देखो ऊपर वाले शेप को देखो सबसे अच्छी तरह से, ऊपर वाला शेप एक रेक्टेंगल है, मानते हो कि नहीं। हाँ इस रेक्टेंगल से कितना पोर्शन कट हो गया, जो कटो स्कूप का सर्कल है उतना कट हो गया। तो मान लो दिस इज L इंटू H, तो हम LH से कितना निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें गड्ढा भी तो फॉर्म हुआ है, तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। एंड इस पूरे चीज के साथ बाकी 5 फेसेस का सरफेस एरिया भी ऐड होगा। It's not nothing that big or that difficult. This is a vanilla ice cream's block. I have taken 1 scoop out of it. So all the 5 surface qualify. On the top surface, there will be a circular dent plus a depression below also. The depression is nothing but the curved surface area of the hemisphere and the circular dent. वो सीख समझा है।
मतलब इसलिए उसके फॉर्मूला से मैं खुश नहीं हूं, जिस ऑर्डर पे उसने आंसर दिया ना, करेक्ट ऑर्डर है। पहले पाई आर स्क्वायर निकलेगा और जुड़ेगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ये सब थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। Have you understood? In fact, you know, chalo, with this we will close the recording.